Stanford, Princeton, Yale, Harvard, MIT, and Cambridge, and so forth, whatever. But my personal interactions when I was with Prabhuji was a GRE topper. Prabhuji graduated from COEP Pune, right? Yeah. And at that time, Prabhuji was a GRE topper, and Prabhuji is extremely dedicated preacher in his practices and his preaching, and has touched all intellectuals, and a very, very kind-hearted Vaishnava. And for me, Prabhuji was my first public speaking teacher, where evaluated me and gave feedbacks. So very grateful to his Chaitanya Prabhu. And especially thanks to Gaurabai Mataji for pushing me that we should have this class for teenagers, So I hope you all will put your mobile phone on silent and ask Prabhuji whatever question, you listen to him, and then whatever questions you have, you can ask and take full benefit, advantage of the association. Let us welcome His Chaitanya Prabhu chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanishalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, thank you. Yeah. Today, and I'll start by asking all of you a question that you may not want to answer, but we'll make it easy for you to answer. Many of you, or most of you, probably were born in families where your parents were practicing bhakti, and then that's how you were introduced to bhakti. Is that right? Okay. So in one sense, bhakti is a part of what you inherited from your parents. And now, as you are growing in your own life, you are in schools, you are later in colleges. How many of you are in college at this stage? Anyone? Okay, a few of you. Thank you. So now, basically, you are more exposed to the broader world as compared to when you are just at home or in your schools. And then there are certain aspects of your bhakti practice, of Krishna consciousness, that you may not feel comfortable sharing with your friends. It's in school or in college. Not only will you not feel comfortable sharing with them, you may even feel a little embarrassed about them. You may not want to talk about that. So, I would like you, if you would like, you can speak this, or you can write it down. So, two things. So, something about your bhakti practices that you feel happy sharing with others, and something about your bhakti practices or bhakti in general that you feel uncomfortable sharing with others. Okay. Would anyone like to share this? Or we are arranging for chits. We can give you chits, you can write, and you can maintain your privacy that way, if you like. So, we'll try to get a whiteboard done, that we can, that we can draw something also over there. Is my question clear? Can anyone rephrase the question for me, that we understand that the question is understood? Can you rephrase? What is the question? The question is that we have to tell something about our life that we feel embarrassed about, like sharing it with friends or
That's one part. And second part is? And the thing we like to share. Something you feel happy sharing. Okay, thank you. So, इसलिए आपने भक्ति एक तरह से चुनी नहीं, आपको दी गई है। और जब अभी आपके जीवन आगे बढ़ रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो अभी आपके जीवन में जो भक्ति का भाग है, वह आप शायद अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। आपको अच्छा लगता है बताने के बारे में, ऐसे करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वो करता हूँ, तो ये करती हूँ, वो करती हूँ। और और दूसरा है कि जो आप बताने में हिचकिचाते हैं, आपको थोड़ी शर्माहट आती है, थोड़ी ग्लानि भी होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इसके बारे में आप एक एक लिख के भी बता सकते हैं या ओरली भी बोल सकते हैं, और फिर उसमें से हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। अगर आप कुछ ओरली बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। Yes, please. आपका नाम? My name is Priyal. And Priyal. Okay, yes. And I am in currently grade 11. And I don't feel as such anything that there is embarrassed to share with anyone about bhakti, that you are engaged in bhakti, and that is the best thing, at least in my life. So I share with everyone that yes, I do bhakti, and that's it. So what do you find when you say it is the best thing in your life? What do you find is best exactly? What bhakti do you like so much that you? Everything, like being organized and being sattvic and each and everything. Patience also in that. Being organized. Being organized means we have like a schedule, we do this in the morning. Yeah. It's organized. Okay. Then what is the other thing you said? Being sattvic. Sattvic means in terms of what, food or habits, or what do you mean? Food, habits, mentality, thinking, and each and everything. Okay. And what do you mean by sattvic? Sattvic, according to me, is nothing but having the purity of food, like having non-toxic food which provides you purity in each and every aspect, like in aspects of thinking and... Okay. Thank you. So, you feel that there is much in bhakti which you can easily share with others? Yes. And you don't find them mocking you or making fun of you because of that? That's nice. Okay. Yes. Hare Krishna Prabhuji, I am Prayasi, and Prayasi. There are actually not many things which embarrass me, but the don'ts in bhakti are something which I can't share with my friends. For example, I can't watch web series, because it can have a lot of stuff in them. I can't maybe I can't do it for going outside anywhere, maybe to a simple restaurant. I can't accompany you because I'm not going to eat anything there. So the don'ts in bhakti is certainly something which would stop me to share things with my friends. But certainly there are things. But certainly there are things like dressing, our culture. That is the beauty, and going to different dhams. That is something which attracts a lot of people. But yeah, the don'ts in bhakti is something which makes me feel embarrassed. By dressing means wearing traditional dresses? Yes. So that you find other girls also like that? Yes. It's interesting. So there are do's which are enjoyable, which you can connect with. It's interesting because I was just talking a few months ago with Indrananda Maharaj. So he was telling that they have this festival of India. Acha, Hindi and English. You suppose you start speaking English, so I start speaking English. Okay, I'll close my eyes. Let's see how many raise hand for Hindi and how many raise hand for English. Okay. And I'll Karikshe Vachanam Tava. I'll follow you. How many English? Somebody is counting? How many want Hindi? Seems like some people want none. Yes. We can have bilingual section also. Bilingual, okay. I'll try to pick. तो भी जो है इंदु महाराज बता रहे थे कि वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया करते हैं और वहाँ पे अलग अलग चीज़ होती है, प्रसाद का स्टॉल होता है उनका,
जब उनका बहुत से अलग अलग वैरायटी स्टॉल होते हैं, तो वहाँ पे जो सबसे पॉपुलर स्टॉल्स में से एक है वो है कि वहाँ पे जो वुमेन होते हैं वो साड़ी पहनती है और फिर वो गोपी डॉट्स लगाती है, बोलते हैं कि उनके लिए नया एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली देयर आर मेनी थिंग्स इन द कल्चर दैट आई ट्राइड, बट द डोंट्स आर अ प्रॉब्लम। जो हमें नहीं करना है बोलते हैं, वो समस्या आती है उसमें। थैंक यू। तो उसके बारे में अभी ये जो है इज नॉट वर्किंग एट ऑल। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? तो आप सब यंग हो तो इसका आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे है कि जब हम आप दो सर्कल्स इमेजिन कीजिए, एक वेन डायग्राम है, दो सर्कल्स है, उसमें उसका इंटरसेक्शन है। तो अभी द सर्कल्स, एक सर्कल है कि जो हम कर रहे हैं और दूसरा सर्कल है जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। अभी इसमें जो है कि कुछ चीज़ें इंटरसेक्ट होती है। अभी आप स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, आप शायद वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, वो भी है। तो ये दो सर्कल्स कुछ जगह पे इंटरसेक्ट होती है और कई जगह पे वो अलग है। अभी आप भक्ति करते हैं, आप धाम में जाते हैं, आप मंदिर में आते हैं, शायद वो सब ये नहीं करते। या आप बता रहे थे कि वो कहीं होटल में जाते हैं खाने के लिए, या फिर वो टीवी सीरीज़ देखते हैं वगैरह, जो भी है। तो अभी जो है जो हमारी फ्रेंडशिप होती है, जो हमारी किसी से मैत्री होती है, वो किस टर्म्स पे मैत्री है, ऑन व्हाट टर्म्स आर वी मेकिंग द फ्रेंडशिप, ये समझना महत्वपूर्ण है। ये कैसे है कि इफ़ टू हैव अ फ्रेंड, किसी से दोस्ती बनाए रखने के लिए अगर हमें खुद को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ रहा है, तो वो वास्तव में वो दोस्ती नहीं है। हर रिश्ते से हम थोड़ा बदलते हैं। अच्छा, ये ऐसे भी सोचते हैं, ये बात मैं कभी सोचा है तो ये सही है, ये ऐसे भी होता है। तो हर रिश्ते में के द्वारा हम थोड़ा खुद को समझते हैं, दूसरों को समझते हैं। हमारी जो दुनिया की समझ है वो थोड़ी बदलती है, थोड़ी विस्तारित होती है, थोड़ी कभी संकुचित हो जाती है, अलग अलग तरह से प्रभाव होता है। तो अभी पर अगर किसी से मैत्री जोड़ने के लिए, किसी संबंध जोड़ने के लिए अगर हमें बहुत ज़्यादा खुद को परिवर्तित करना पड़ रहा है, तो फिर उसमें क्या है, इन गेनिंग समवन एल्स वी मे बी लूजिंग आवरसेल्व्स। किसी और को प्राप्त करने के लिए हम शायद खुद को खो रहे होंगे। तो हमें देखना है कि ऐसे जो, अच्छा आप सिंपल वाइट बोर्ड ला रहे हैं क्या? ओके, चलेगा। तो अभी क्या है, ये शायद इतना ज़रूरी नहीं है कि हम खुद को खो दें किसी के लिए। तो और ये भी है कि हम जो फ्रेंडशिप जोड़नी है वो किस टर्म्स पे जोड़ रहे हैं, अगर वो हम समझ लेते हैं तो फिर इट बिकम्स रिलेटिवली ईजियर टू हैव लास्टिंग रिलेशनशिप्स। तो हम जो संबंध है, जो मैत्री है, जो वो काफ़ी समय तक रह सकती है जब जो टर्म्स है दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, जैसे आप बताया कि सात्विक चीज़ें जो है लोगों को प्रिय है। तो हम अगर कभी कभी ऐसे कैटेगरी करते हैं कि ये भक्त है और यह भक्त है, हम सोचे कि मैं सिर्फ भक्तों से मैत्री करूँगा और अभक्तों से मैत्री नहीं करूँगा, तो फिर वो हमारा सोशल सर्कल बहुत संकुचित हो जाएगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। पर ये भक्त और अभक्त ऐसा जब हम विभाजन करते हैं तो ये बहुत बड़ा है, मतलब अभक्त की कैटेगरी बहुत बड़ी है। पर अगर अभक्त की जगह पे देखने के अगर हम देखते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक, ऐसे विचारधारा से हम देखते हैं। तो अभी आपके फ्रेंड्स में कुछ लोग, आपके स्कूल में या कॉलेज में कुछ लोग हो गए जो नशा करते हैं, फिर ड्रग्स करते हैं। अभी वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे वो खुद का भी विनाश कर रहे हैं। तो अभी दुर्भाग्य है, ऐसे कोई ऐसे कर रहा है, वो किसी प्रभाव के कारण है वो कर रहे हैं। पर अभी जो मान लीजिए कोई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है, अच्छी तरह से बर्ताव भी करते हैं, पोलाइट है, कर्टियस है, तो वो सत्वगुण में हम कह सकते हैं कुछ हद तक। कुछ आदतें होगी तो सत्वगुण में नहीं है, शायद वो
मांस खाते हैं या कुछ है, पर ओवरऑल जो उनका बर्ताव है तो हम देख सकते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसको कह सकते हैं सात्विक जो है ये एक तरह से प्रो डिवोशनल है, वो भक्ति के अनुकूल है। जो राजसिक है वो एक तरह से कहते हैं नॉन डिवोशनल है, और तामसिक जो है वो एंटी डिवोशनल है। जो सात्विक है वो भक्ति के अनुकूल है, वो भक्ति से, राजसिक जो है भक्ति से अलग है, और तामसिक जो है ये भक्ति से पूरा विपरीत है। तो अगर हमें किसी से मैत्री करनी भी है तो अगर भक्ति के टर्म्स पे वो मैत्री नहीं हो रही है तो फिर हमारे सात्विक टर्म्स पे हम कर सकते हैं। सात्विक टर्म से मतलब शायद हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, शायद हम आजकल जो है केयरिंग फॉर एनिमल्स ये बहुत कूल हो गया। अभी इंडिया में अभी लोगों के पास डॉग्स है, कैट्स है, पेट्स आ रहे हैं, पर आई डोंट नो इंडिया में तो कितना पॉपुलर है। अमेरिका में एक पॉपुलर, उसको कहते हैं बोवाइन थेरेपी। बोवाइन पता है किसी को मतलब क्या है? बोवाइन क्या है मतलब किसी का? Scientific terms used for cats and dogs. Bovine. Actually, bovine. Something for animals. Yeah, it's animal specifically. It's for cows. Cow specifically. Cow family. तो क्या है कि अमेरिका में ये रिसर्च हुआ है कई बार कि कोई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो डिप्रेशन के लिए अलग अलग क्योर बताया है। तो एक क्योर उन्होंने बताया कि आप घोड़ों के साथ रहो, उनको क्लीन करो, उनके साथ समय बिताओ। इक्वाइन थेरेपी कहते हैं उसको। तो तभी हमारे भक्तों ने और कई हिंदू लोगों ने बोवाइन थेरेपी प्रपोज की है। बोवाइन थेरेपी मतलब आप गायों के साथ जाओ और गायों की सेवा करो। हम सेवा का, वी डोंट यूज द वर्ड सेवा, वी कॉल दे काउ कडलिंग। और इसके बहुत ही अमेजिंग इन्फ्लुएंसेस हैं, लोगों को इतना अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली, कैन यू गेट इट क्लोजर? हरे कृष्णा। ओके, वन थिंग, see, if you try to write, there are two problems. My descriptive ability, your depictive ability. So can you just, we'll move this away and you can just give me that chair, one of those chairs. आपको यहाँ दिख रहा है? माइक जरूरी है क्या? आपको सुनाई दे रहा है? ओके, बहुत विल कैच इट फॉर। ओके, ठीक है, चलिए। थैंक यू। इसको वाइपर भी है ना इसका? वाइपर भी है ना इसका? वाइपर भी है। ओके, अगर ये डिवोशनल है, वो नॉन डिवोशनल है, तो ऐसे लगेगा कि हमारे और हमारे मित्रों के बीच में, हमारे सहपाठी के बीच में कुछ ज़्यादा कॉमन है ही नहीं। पर एक्चुअली नॉन डिवोशनल्स को ऐसा देखने की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, ये जो है, ये इसमें सात्विक
सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो है ये प्रो डिवोशनल है, ये नॉन डिवोशनल है, और ये तो अभी जो है इसमें जब हम चुनते हैं तो जिस हद तक हम इस सर्कल में इसमें भी देखने का प्रयास करते हैं तो यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी थिंग्स। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप खुद आप शेयर कर सकते हो उनके साथ, उनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट मिल सकते हैं, और उसमें देयर इज़ नो, आपको खुद के जो इम्पोर्टेंट है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है कि एंड फाइंड मोर ऑफ दिस। एक और चीज़ है एनवायरनमेंट। आजकल बहुत एनवायरनमेंट में जो है उस पर बहुत से कंसर्न है कि कैसे हम ग्रीन जीते हैं। तो एक्चुअली हमारा जीवन में काउ थेरेपी के काउ कडलिंग के बारे में बात कर रहा था। तो हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है इज़ एक्चुअली वेरी इक्वल लाइफस्टाइल, उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो दैट वे यस देयर आर सर्टेन डोंट्स which may stop us from connecting with friends, but there are many do's which can also help us connect with friends. Okay. Thank you. Any other points, anyone? अगर आपने लिखा है तो भी दे सकते हैं आप मुझे। That's all. तो चाहे कि किसी कोई पहले थोड़े शायद था पर अभी मैं नहीं हूँ, तो थोड़े सब पार करते हैं। ओके अभी मैं जो भक्ति कर रहा हूँ मेरे मित्र स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें कुछ समस्या नहीं है। दैट्स नाइस टू नो। एनीवन एल्स? Yes, please. Prabhuji, as you said that if a person is studying regularly, he is waking up early, he is in a sattvic mood. But if there is a money-minded ideology behind that I would want to do something in future just to earn money, there is something like it's always hitting us that we are studying so to earn money in future. So if that is there, so isn't it in the Rajasic mode? Okay. तो अगर कुछ अच्छे तरह से एक तो सात्विक जीवन जी रहा है, पढ़ाई करता है, जल्दी उठता है, पर का उद्देश्य है बाद में पैसा कमाना है बहुत, तो क्या वो राजसिक है? हाँ, एक तरह से है। कैसे है कि सत्व, रजस और तमस जो है ना, ये अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। जैसे बहुत कम व्यक्ति है जो पूर्णतया सत्व में है, जैसे बहुत कम व्यक्ति है जो पूर्णतया रजस में है। अलग अलग गुणों का जो होता है रजस तमस चार हो गया, सत्वम भवति बार, तो मिक्स होते हैं। तो ये हो सकता है कि वो जो पैसे चाहते हैं वो राजसिक है उसके जीवन में, पर ऐसे नहीं है कि पूरा शायद उनका जीवन राजसिक है। कुछ लोग राजगुण में होते हैं, लेकिन पैसा चाहते हैं तो पैसे के कारण वो शॉर्टकट्स देखते हैं, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, सोचते कि ये करूँगा वो करूँगा, ट्रिक करूँगा, चीटिंग करूँगा, उससे भी तो कोई पैसे कमा सकता है। तो क्या है कि देयर आर टू थिंग्स, हमारा क्या उद्देश्य है, what are the goals we are trying to achieve and what are the means by which we are trying to achieve the goals. हम क्या माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों देखना है हमें, और उसके बाद में हम देख सकते हैं सत्व है रजस। तो आप कह सकते हैं कोई पैसा कमाना चाहता है वो राजसिक है, पर शायद वो मेहनत करके ईमानदारी से अगर पैसा कमाना चाह रहा है तो वो जो पद्धति है वो राजसिक नहीं है, वो तो सात्विक है। कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहता है, कोई दूसरों से शोषण करके पैसा कमाना चाहता है, तो वो जो है तामसिक हो जाता है। Anyone else? तो एक है कि आपने सब जहाँ तक बता रहे थे आप जो भक्ति के कल्चर के बारे में बता रहे थे कि ये हम कर सकते हैं, ये नहीं करते हैं, तो इज़ देयर एनीथिंग फ्रॉम द भक्ति फिलॉसफी, उसके बारे में कभी आपको थोड़ा हिचकिचाहट होती है किसी को बताने के बारे में, या भक्ति फिलॉसफी हम कुछ सीखते हैं कि आपको लगता है क्या ये सही है, कैसे समझ सकता हूँ मैं, ये कैसे समझा सकता हूँ मैं, या खुद कैसे समझ सकता हूँ, बोथ वेज, हाउ कैन आई मेक दिस अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स और हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस माई सेल्फ। ऐसे कोई सवाल है? यस। कॉन्सेप्ट ऑफ परिक्रमा, जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं तो
उसको कैसे जस्टिफाई करें कि परिक्रमा हो भगवान की? ओके, तो हम परिक्रमा करते हैं तो उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन. आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, या पहले आई विल गिव अ ब्रॉड प्रिंसिपल, देन आई विल आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन. कैसे है कि कई बार जब हम कुछ धार्मिक करते हैं, भले या धार्मिक आदि करते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि आप बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं. और रिचुअल जो है रीति रिवाज कर रहे हैं, तो कुछ क्या कहते हैं, क्या है ऐसे बिना कुछ समझे सोचे ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ तो क्या ऐसे लगता है. बट एक चीज़ समझना है कि शायद आपको मुझे पता हो कि कुछ 10-12 8-7 साल पहले कुछ 2 मूवीज आए थे, OMG और फिर PK. तो फिर तो वो जो मूवीज थे उसमें सटायर थे, सटायर ऑन रिलीजन. तो दोनों मूवीज़ के बारे में मैंने किताबें लिखी थी. एक था री आंसरिंग द क्वेश्चंस और दूसरा था GK फॉर PK. सो जो GK था, GK का मतलब था जनरल नॉलेज, गॉड नॉलेज एंड गीता नॉलेज, तीनों के आधार पर बना सकते. तो रीति रिवाज जो है ना, वास्तव में ये हर जगह में होते हैं. अभी मान लीजिए किसी का बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन हम क्या करते हैं, केक लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो कैंडल हम ब्लो करते हैं. तो अभी कैंडल क्यों ब्लो करते हैं? कैंडल ब्लो करने से बर्थडे का क्या संबंध है? तो वो क्या है, एक पुरानी स्कैंडिनेवियन बिलीफ था. स्कैंडिनेविया जो है यूरोप में कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन बिलीफ सिस्टम थी. उनकी एक श्रद्धा थी, विचारधारा थी कि जब व्यक्ति का जन्मदिन होता है उस दिन उसमें कोई भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, सब स्पिरिट एंटर्स. और अगर उस समय आप कोई कैंडल बुझा देते हो, करने से वो भूत प्रेत उनके शरीर से निकल जाता है. तो अभी जितने साल का व्यक्ति हो गया है उतने भूत प्रेत उसमें आते हैं, इसलिए उतने कैंडल लगा उतने वक्त. तो अभी आप ये सुनते हैं तो हंसेंगे ये, पर क्या है कि वो कारण बहुत कम लोगों को पता है, पर वो एक तरह से रीति रिवाज बन गया है. पर क्योंकि क्या है, ये मॉडर्न है, वेस्टर्न है, तो ये कूल लगता है. और कोई ट्रेडिशनली कुछ करता है, परंपरा से होता है, ये क्या है रीति रिवाज कर रहे हैं आप. पर रीति रिवाज हर जगह पे होते हैं. मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या है, वो बॉल को मारते हैं और बॉल बाउंड्री के पर जाता है, तो वो अंपायर क्या करता है, हाथ ऊपर करता है. अभी इससे कुछ सिक्स तो दिख नहीं रहा है, इसका सिक्स से कुछ संबंध है ही नहीं. ऐसे नहीं कि 6 उंगलियां उठा रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें. दिस इज अ रिचुअल. ये क्या है, जब बॉल बाउंड्री के ऊपर डायरेक्टली जाता है तो तभी वो दिखाते हैं इसी चीज़. तो नॉट ऑल रिचुअल्स आर रैशनल. जो रीति रिवाज होते हैं, भौतिक जगत में भी रीति रिवाज है, पर वो रैशनल नहीं है. रैशनल मतलब लॉजिकल रीज़न ज़रूर होना चाहिए, ऐसे नहीं है. तो रिचुअल्स क्या करते हैं, दे गिव स्ट्रक्चर फॉर रेगुलर एक्शंस. जो हम हमेशा बार बार कोई चीज़ करते हैं, तो वो कैसे करनी है. मान लीजिए किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो अभी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उनको हमको थोड़ा पोलाइटली नाइसली ग्रीट करना है, तो हम हैंडशेक करेंगे. अभी हैंडशेक क्यों करेंगे, तो पहले का समय जब था कि शायद 2 योद्धा मिल रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि इसके पास कोई चाकू होगा, कि मार डालेगा, तो हाथ आगे करते हैं, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम शेक करते हैं ऐसे. तो अभी वैसे कुछ नहीं होता है, पर वो एक रिचुअल बन गया है. तो अगर हम बोले कि हैंडशेक करना है, कुछ है नहीं, तो हैंडशेक नहीं करना है, तो एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने के बाद ग्रीट कैसे करें खुद को. तो कुछ तो चाहिए कि आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं आपसे मिलकर खुशी हो. से दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे. तो रिचुअल्स हर जगह पे ज़रूरी है. और बहुत सी जगह पे जो रिचुअल्स है उनको हम न तो हम कोई कारण पूछते हैं, और न ही वास्तव में कुछ कारण है ऐसे कारण जो अभी हमको लॉजिकल लगे ऐसे है. तो इसीलिए केवल धर्म में रीति रिवाज नहीं है, हर जगह पे रीति रिवाज है. पर जो धर्म में रीति रिवाज है वो उनका एक तरह से तत्वज्ञान के स्तर पे कारण होता है. क्या है कि अभी मान लीजिए जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, हम कभी प्रणाम करते हैं. तो अभी हाथ जोड़ने का मतलब क्या है, मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ. अभी ये आदर जो है अंतरंग भाव है. पर अगर मैं कहता हूँ
अगर मैं कहता हूँ कि मैं मान लीजिए ऐसे ये पैर ऊपर करके यहाँ पे बैठ जाता हूँ और पूरा ऐसे बैठा हूँ, मैं बहुत नम्र हूँ। अभी ऐसे नम्रता लगती है? नहीं। क्या होता है, जो द एक्सटर्नल पोस्चर क्रिएट्स एन इंटरनल इमोशन। जो बाह्य हमारा शरीर की धारणा है, उससे एक प्रकार की मन की भावना आ जाती है। तो ये जो है शरीर की धारणा और मन की भावना, इनमें संबंध है। तो इसको समझ के कई बार हमारे शास्त्रों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने कोई हमें ऐसे कार्य बताए हैं where the externals are conducive for some internals। कोई बाह्य कार्य ऐसे करे जिससे कि अंतरंग भावना, उचित भावना प्रकट हो जाए। तो ये आपका सवाल था परिक्रमा के बारे में। तो परिक्रमा का भाव क्या है कि जब हम भगवान की ओर जा रहे हैं, भगवान की मूर्ति उसके प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसका भाव क्या है कि हम जो भगवान है उन पे चिंतन कर रहे हैं। तो हम उनके सामने हाथ जोड़ के चिंतन कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रणाम है, उसे चिंतन करना है। पर जब हम उनके चलो घूम रहे हैं तो क्या है, हम हमारे पैरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हमारे पैरों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और जब गोल जाते हैं तो क्या है कि उसके द्वारा वी गेट मोर टाइम टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड। एक जगह खड़ा रह सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो जब वहीं से चले जाएंगे, वहाँ से तो कुछ नहीं है, तो वहीं पे परिक्रमा करते हैं तो उस पर चिंतन करने के लिए और समय मिलता है। इसे साधारण परिक्रमा करनी होती है तो शायद तभी जप करते हैं, कुछ कीर्तन होता है। अगर आप इस खास करके हरे कृष्ण मंदिर में देखेंगे, परिक्रमा के मार्ग पे सब भगवान के चित्र होते हैं, अलग अलग चित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिक्रमा ये बाह्य कार्य है और उसके अनुकूल उसका उद्देश्य क्या है कि अंतरंग मनन में मदद हो। तो इसीलिए इट्स एन एक्सटर्नल प्रैक्टिस meant to aid in internal contemplation। क्या आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का? थैंक यू। तो कोई और सवाल है किसी का? यस प्लीज। जैसे कि भागवतम में जो कॉस्मोलॉजी आती है उससे बड़ा कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, भागवतम में जो कॉस्मोलॉजी आती है उससे कन्फ्यूजन, क्या कन्फ्यूजन एग्जैक्टली बता सकते हैं? जैसे कि भागवतम की कॉस्मोलॉजी है, 5th कैंटो में ऐसी ऐसी बातें आती है कि सन जो है उसके अराउंड अर्थ की रोटेट कर रही है, रेवोल्यूट कर रही है। तो ये सब बातें जो है, हालांकि हम समझ भी लेते हैं कि हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट वगैरह वो सब हम समझ लेते हैं, ओके, लेकिन तो भी प्रैक्टिकली उसको सब अच्छी बात है, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। तो अभी अच्छा, ये अच्छी बात है। This has become like reusable paper। Nice। So thank you। This is the kind of questions I was looking forward to। तो अभी देखिए, भागवतम हर ग्रंथ का एक उद्देश्य होता है। भागवतम का उद्देश्य क्या है, कोई बोल सकता है? भक्ति। यस, भक्ति सही है, पर खास करके भागवतम किसने किसको बोला है? शुकदेव गोस्वामी परीक्षित। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को किस लिए बोला है? मुक्ति सही है। परीक्षित महाराज भी क्या हो रहा था, उनको 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी, और उनके लिए उनको भगवान का स्मरण कैसे हुए, कैसे कर पाए वह बताने के लिए, उनको उसमें मदद करने के लिए उनको भागवतम बताया गया था। तो भागवतम में जो भी है वो क्या है? एंटायर भागवतम it is just resources for remembering Krishna। सारा भागवतम का उद्देश्य है कि कैसे भगवान का स्मरण कर सकें। और भागवत में बताया है कि हम 2 तरह से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कैसे है कि हमको कृष्णा कॉन्शियस होना है, भगवान का स्मरण करना है। तो एक है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो कृष्ण को मेरे मन में लाता हूँ, मतलब मैं कृष्ण की कथा सुनता हूँ और उसके द्वारा मैं कृष्ण का स्मरण करता हूँ। ये एक है। पर दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पे हूँ और ऑलरेडी हमारे मन में कुछ है। तो ऐसे वाइपर तो जो अभी ये एक पद्धति है, और दूसरी जो है कि जो मेरे मन में पहले से है
उसको मैं कृष्ण से जोड़ता हूँ। द टू थिंग्स है कि मेरे मन में जो दूसरा है कि मेरे मन में जो पहले से विचार है उनको कृष्ण से जोड़ता हूँ। मतलब क्या है कि हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं, इससे कृष्ण भावना हो सकते हैं। पर अब मान लीजिए आपने पहले कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा है, तो अभी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप किसी कृष्ण कीर्तन में कृष्ण कैसे लगा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे मन में पहले से है उसको हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। तो अभी भागवत में कई कथाएँ हैं, वो क्या है डायरेक्टली पहली कैटेगरी कृष्ण का संबंध देगी। पर जो भागवतम में कॉस्मोलॉजी का वर्णन है, जो ब्रह्मांड का वर्णन है, वो दूसरे कैटेगरी में आता है। दूसरे कैटेगरी मतलब क्या है, परीक्षित महाराज उस समय बड़े ही सुशिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे, तो वो पहले से ही ब्रह्मांड के बारे में जानते थे। कुछ क्या जानते थे? देयर वॉज द प्रिवेलिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी। उस समय लोग ब्रह्मांड को किस तरह से समझते थे, वो उनको पता था। तो अभी वो उनका जो ब्रह्मांड का ज्ञान था उसको भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, वो उनका सवाल था। वो उनका सवाल था। What is the question? What I know about the cosmos, how can I connect that with Krishna? जनरली क्या होता है, हमारा जो नॉलेज है, नॉलेज ग्रोज फ्रॉम द फैमिलियर टू द अनफैमिलियर। जो हम जानते हैं और वो जो हम जानते नहीं हैं उससे हम जोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, उससे हमारी समझ बढ़ती है। अगर पूरा जो हम जानते ही वही बताया जा रहा है तो हम बोर हो जाते हैं। पूरा कुछ जानते ही नहीं, ऐसे हम सुनते हैं कुछ तो भी बोर हो जाते हैं। तो क्या है, कुछ भी हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए क्या है, समथिंग फैमिलियर समथिंग अनफैमिलियर, दोनों का मिल होता है। तो फिर क्या होता है, हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो अभी क्या है कि तो अभी क्या है कि हमारे समय में अगर हम देखते हैं तरह से, ये टाइमलाइन है, दिस वाज 5000 years ago, दिस इज टुडे। तो उस समय जो कॉस्मोलॉजी का ज्ञान था और आज जो कॉस्मोलॉजी का ज्ञान है वो काफ़ी अलग है। तो अभी महत्वपूर्ण क्या है कि हमें कृष्णा इज टाइमलेस। तो उस समय परीक्षित महाराज उस ज्ञान के द्वारा कनेक्ट होते भगवान से, अभी शायद हम इस ज्ञान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है कि वी हैव टू कनेक्ट विथ कृष्णा। तो अभी शायद आप जानते हैं न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो, ये सब जो लोग थे वो आजकल के जो हमें मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है उसके वो पायनियर्स थे। उसके शुरुआत में वो बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। वे सब भगवान को मानते थे और कहते थे कि ये सारे ग्रहों की जो पाथ है, ग्रहों का जो पाथ मार्ग है, जिस मार्ग ऑर्बिट्स के वो हिंदी शब्द है, शायद मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता था, छोड़ दो। तो जो उसकी जो ऑर्बिट्स है वो अपने आप नहीं आई है, वो किसी बड़े वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइनर के द्वारा आई है। वो तो वो क्या है, वो जो ये ब्रह्मांड को देख रहे थे, वो ब्रह्मांड को देख के भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो द पॉइंट इज टू रिमेंबर कृष्णा। तो तभी वो उस ब्रह्मांड के ज्ञान से स्मरण कर रहे थे, अभी हम इस ब्रह्मांड के ज्ञान से स्मरण कर रहे थे। तो इसीलिए उस पर हमें फोकस करना है। भागवत का उद्देश्य क्या है, जब परीक्षित महाराज 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तभी वो एक कॉस्मोलॉजी में PhD प्राप्त करने में उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तभी उनको क्या है, भगवान का स्मरण करना है। तो वी शुड ऑलवेज बी क्लियर, हम कौन सी किताब क्यों पढ़ रहे हैं। हम भागवतम कॉस्मोलॉजी जानने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, भागवतम भगवान का स्मरण करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर भी कोई कह सकता है पर ये जो है ना, वो कॉस्मोलॉजी और आज कॉस्मोलॉजी इतनी अलग है, क्या एक सही है दूसरी गलत है। अभी ये सही और गलत ऐसे नहीं है, एक तरह से ये क्या है कि जो साइंस डज नॉट ऑफर अस reality. Science does not tell us about reality. Science gives us models of reality. Model मतलब क्या? साइंस क्या करता है, हमें जो सत्य है वो क्या है इसे बताता है, ऐसे नहीं है। वास्तव में सत्य में क्या कहता है, मॉडल, एक कैसे प्रतिमा कह सकते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि एक
मान लीजिए मैप है, नकाशा है, तो अभी दिल्ली का नकाशा है, तो दिल्ली का नकाशा दिल्ली पे ही आधारित है, पर वो जो नकाशा है वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली की अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो मुझे थोड़ा मदद हो सकता है उससे, बट सो द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। उसी वजह से विज्ञान जब मॉडल लेता है तो मॉडल इज़ नॉट द रियलिटी, वो एक टूल है, एक औजार, एक माध्यम है जिससे कि हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उपयोगी है, बहुत उपयोगी हो सकता है, पर इट इज़ नॉट द फुल रियलिटी। जैसे मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। तो अभी अगर आप देखेंगे दिल्ली का एक पॉलिटिकल मैप हो सकता है, एक फिजिकल मैप हो सकता है। पॉलिटिकल मैप मतलब ये म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये दफ्तर यहाँ पे है, ऐसे। फिजिकल मैप हो सकता है कि यहाँ पे नदी है, ये जगह इस टेम्परेचर इस हाइट पे है, ये जगह इस पे है, यहाँ पे जो सॉइल है ये ऐसी है, वहाँ पे ज़मीन है वैसी है। तो अभी कभी कभी आप देखिए फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप अगर आपको प्रॉपरली बॉर्डर नहीं होगा तो उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखेगा ही, काफ़ी अलग होता है। एक ही जगह का मैप है पर वो अलग है, क्योंकि क्या है, दोनों में क्या किस चीज़ पर जोर दे रहा है वो अलग है। तो उसी तरह से जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, अगर अलग अलग दृष्टि से देखते हैं तो उसका अलग अलग दृष्टि, अगर इफ यू सी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स विल गेट डिफरेंट पिक्चर्स। अलग अलग दृष्टि से देखें तो अलग अलग हमको उसका दृष्टांत मिल सकता है। तो इसीलिए ये दोनों विरुद्ध नहीं है, दोनों अपने अपने स्तर पे उचित है। पर या क्या सूर्य पृथ्वी की ओर जा रहा है, पृथ्वी सूर्य की ओर जा रहा है? सबसे पहले इट्स नॉट दैट सिंपल। ऐसे नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ही पृथ्वी की ओर पृथ्वी के अराउंड जा रहा है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड है वो, जो है ना, कहीं कहीं भागवत में ब्रह्मांड का वर्णन बताया गया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है। कोई कहते हैं ऐसा है वैसे ही, पर फिर भी मान लीजिए भले ही कहता है ये ऐसे कह रहा है कैसे कह रहा है, तो ये सही है वो गलत है नहीं। अभी कोई भी मॉडल होता है, वो मॉडल कैसे सही है गलत है पहले बदलता है, मॉडल से हम प्रेडिक्शंस करते हैं। भाई मैप सही है गलत कैसे पता चलता है कि अगर मैप से कहते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपको ये 15 किलोमीटर है, तो अगर हम देखते हैं गाड़ी से जाते हैं और 15 किलोमीटर पहुँच जाते हैं वहाँ पे, मैप सही है। तो जो अभी जो विज्ञान का मॉडल है और जो शास्त्रों में जो मॉडल बताया गया है ब्रह्मांड का, तो दोनों से कुछ प्रेडिक्शन होते हैं। शास्त्रों में जो एक्लिप्स होते हैं, क्या अभी एक्लिप्स को प्रेडिक्ट करते हैं। शास्त्रों में भी जो अमावस्या वगैरह होती है, अमावस्या पूर्णिमा होती है, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, फेजेस ऑफ द मून, और वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट होता है। जो हमारे पंचांग वगैरह है वो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी पे आधारित नहीं है, ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी पे आधारित है, और उससे भी प्रेडिक्शन हो रहा है। तो वो जो प्रेडिक्शन है वो सही हो रहा है, विज्ञान से प्रेडिक्शन होता है वो भी सही हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का पॉइंट क्या है, बोथ मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेडिक्टेबिलिटी वर्क। तो इसीलिए कोई कहना यही सही है वो गलत है, ये मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों ब्रह्मांड को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण से ये देखा गया है। तो हमें कौन सा, तो क्या हमें भागवतम का ब्रह्मांड का वर्णन समझना जरूरी है, आज का विज्ञान ने बताया उसको गलत बोल के छोड़ना है? ये जरूरी नहीं है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आज हम इस प्रकार से सीखे हुए तो ठीक है, ये सीख सकते हैं। भागवतम में दूसरा सिखाया गया वो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पर भागवतम को समझने के लिए, भागवतम का उद्देश्य पूरा करने के लिए हमको उसमें जो ब्रह्मांड बताया है उसको समझना जरूरी नहीं है। क्योंकि भागवत में ब्रह्मांड क्यों बताया है, ब्रह्मांड इसलिए बताया है कि भगवान का स्मरण कैसे करें। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। एक आखिरी पॉइंट होंगे, ऐसे है कि द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन ड्रामेटिकली ऑल्टर द ऑब्जर्व्ड रियलिटी। हम किस दृष्टि से किस स्तर पे देख रहे हैं, उसे जो देख रहे हैं वो पूरा बदल सकता है। मान लीजिए किसी के पास कुछ कोल है, अभी कोल का कलर क्या होता है, ब्लैक। किसी के पास चौक है, चौक का कलर क्या होता है नॉर्मली, वाइट। तो अभी और दोनों को हम पाउडर करते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं पाउडर को, तो जो पाउडर कौन से कलर का होगा, परफेक्ट। तो अभी ये पाउडर हमको ग्रे दिख रहा है, पर उसी पाउडर को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, अब क्या दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी आपको ग्रे दिखेगा नहीं। तो अभी वो सही में क्या है, वो ग्रे पाउडर है या वो ब्लैक एंड व्हाइट पार्टिकल्स है?
So the reality depends on the scale of observation. तो आईज से हमको, हमारी आँखों से ग्रे दिख रहा है और माइक्रोस्कोप के अंदर हमको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो अलग अलग स्तर पर देखिए तो वही चीज़ अलग दिख सकती है। इसलिए ब्रह्मांड अलग अलग स्तर पे देखा जा रहा है, इसलिए तो अलग अलग दिखता है। देयर नो, कोई ज़रूरत नहीं कि उससे हमें ये देखना यह गलत सही है, गलत है, ये छोड़ना है, मुझे वो पकड़ना है, नहीं। हमें हम दोनों अलग अलग दूसरे दिखा रहे हैं, इसे देख के स्वीकार कर सकते हैं। थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम अभी स्टूडेंट्स हैं, हमारी लाइफ में काफ़ी हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो हमारी लाइफ में पढ़ाई को लेकर काफ़ी प्रेशराइज होता है, मतलब पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, स्टडी और स्टैंड अप होता है ऑल, एंड समटाइम्स देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ व्हिच ब्रेक्स अस डाउन इमोशनली, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर हम अपने आप को हैंडल कैसे करें एंड एट द सेम टाइम हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से अपनी भक्ति पे फोकस कैसे करें? जब हमारे पढ़ाई में बहुत प्रेशर आ जाता है, कभी कभी अपेक्षा ज़्यादा होती है और फिर टेंशन आ जाता है तभी हम कैसे स्टडी रख सकते हैं और कैसे हम कृष्ण भगवान पर फोकस कर सकते हैं और इमोशनल पेन को भी कैसे डील कर सकते हैं? समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है, फैमिली में कोई अचानक से बीमार हो जाता है या कुछ और सिचुएशन हो जाती है। यस, तो कैसे है कि भाई हम जानते हैं कि आवर एग्जिस्टेंस इज 3 लेवल, सोल, माइंड एंड बॉडी, आत्मा, मन और शरीर। अभी क्या है कि हमारी चेतना जिस स्तर पे है उस स्तर पे हम भावनाएं अनुभव करते हैं। मान लीजिए कोई नए कार में जा रहा है, नया कार लिया है और वो सिग्नल पर रुक जाता है और वो पीछे दूसरी कोई कार आती है, जेंटली उसको थोड़ा धक्का देती है, उसके फेंडर पे, उसके क्या कहते हैं, फेंडर ही कहते हैं उसको, जो बम्पर, अच्छा हमारे गाँव में फेंडर कहते हैं उसको। तो जिसके बम्पर पर खरोच भी नहीं आई है पर थोड़ा सा धक्का लगा है, ऐसे लगता है व्यक्ति को, उसको हृदय का सदमा हो गया, क्या हो गया? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की चेतना उसमें संचित हुई है। So where our consciousness is, that is where we experience our emotions. जहाँ हमारी चेतना है उसके वहीं पे हम सारी भावनाएं अनुभव करते हैं। तो अभी कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण यहाँ पे ऊपर। तो हमारी चेतना शरीर में हो सकती है, कभी कभी हमारी से तबीयत कभी ठीक नहीं हो सकती है, लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत मैं I'm too tall, I'm too short, I'm too fat, I'm too thin, I'm too fair, I'm too dark, अलग अलग चीज़ें हमको लग सकती है। उससे शायद हमारी चेतना हमारे शरीर में जाती है और वो एक स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा शरीर हमें हमारा करंटली वो हमारा व्हीकल है, ज़रूरी है हमारे काम करने के लिए। तो तभी क्या है, हमारी चेतना जिस चीज़ में लगी हुई है उसमें हमारी भावनाएं बहुत अनुभव करेंगे। तो कृष्ण भावना ये केवल एक रीति रिवाज नहीं है, क्या है, वो एक पद्धति है जिससे कि हमारी चेतना को हम ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ तक कैसे होता है कि न केवल हमारा शरीर पर हमारा मन, हम हमारे मन से भी अलग हैं, हम शरीर और मन दोनों के परे हैं। और इसका जब हम अनुभव करते हैं तो क्या होता है, तब मन में भावनाएं आती है। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि मेरे मन गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आया कुछ समय के लिए चला जाएगा। तो जिस हद तक हम ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब भक्ति के द्वारा आत्मा का संबंध भगवान से जोड़ते हैं, तो फिर शरीर और मन के स्तर पे जो समस्याएं आती है वो हमें इतनी पीड़ित नहीं करती है। मेरे एक मित्र है, वो भक्त मित्र है, वो फ्लोरिडा में गए थे और फ्लोरिडा में वो राइटिंग रिट्रीट पे गए थे। तो फ्लोरिडा, अमेरिका में फ्लोरिडा है, वहाँ पे एक ऐसे थोड़ा फॉरेस्ट जैसी जगह था, जंगल जगह, वहाँ पे कैबिन थी, उसमें रह रहे थे। तो वहाँ पे गए, शाम को गए और वो अगले दिन से अपना राइटिंग चालू करने आए थे। तो अगले दिन वो उठे तो लाइट चालू किया, लाइट चालू नहीं हो रहा था। फिर अपना फ़ोन लिया, उनका फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था।
बाद में मैंने खिड़की खोली तो आजू बाजू ज़मीन थी ही नहीं, चारों ओर पानी आ गया था। तो रात को कोई स्टॉर्म आ गया था, कोई तूफान आ गया था, आजू बाजू का डैम टूट गया था कुछ। तो जो उसको लीवे क्या कहते हैं उसको, लीवीज, लेवी, LEVE, लेवी टूट गया था। तो चारों ओर पानी हो गया था और वो अपने आँखों से देख रहे थे कि क्या लोग घर का टीवी ऐसे तैर रहा है, कोई सोफा तैर रहा है, और क्या आँखों से देख रहे थे कि जो है वो पानी ऊपर चढ़ रहा है। और अभी खिड़कियाँ तुरंत बंद कर ली, पर वो पानी का इतना प्रेशर था खिड़कियाँ टूट जाएगी और वो अंदर आ जाएगा। और क्या करें अभी, वो ऐसी जगह पे थे, अकेले थे, लिखना चाहते थे, अकेले गए थे वहाँ पे, और फ़ोन काम नहीं कर रहा है और कोई वहाँ पे है नहीं। तो फिर वो थोड़ा पैनिक होने लगे, डर लगा, देखते क्या करूँ। और फिर उन्होंने देखा कि वो पिछले रात को आए थे, कैबिन में रह रहे थे, ज़्यादा कुछ देखा नहीं था उन्होंने। तो फिर वो देखा, उनको लगा था एक जगह पे कोई कबर्ड है, पर तो ना ये तो दरवाज़ा कबर्ड का थोड़ा कबर्ड से थोड़ा ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा लग रहा है। तो फिर मैंने उसको खोलने का प्रयास किया, जो खोला तो देखा कि वहाँ पे एक सीढ़ी थी और ऊपर एटिक था। एटिक पता है आपको, घर के ऊपर जो होता है ऐसे, टेरेस जैसे कह सकते हैं, पर टेरेस खुला होता है, एटिक जो होता है नॉर्मली बंद होता है। तो उसमें लोग जो उनके घर में सारा इनका सामान इस्तेमाल नहीं करते, वो ऊपर रख देते हैं ऐसे। तो वो एटिक था, तो वो एटिक में चले गए और वहाँ पर छोटी सी खिड़की देख रहे थे, वो पानी ऊपर चढ़ रहा था। वो जो ग्राउंड लेवल पे तो थे, इंडिया में जो ग्राउंड लेवल पे थे, अमेरिका में ग्राउंड लेवल नहीं होता, लेवल 1 कहते हैं उसको, लेवल थे। तो वो पूरा लेवल 1 वो पूरा डूब गया, और क्योंकि वो ऊपर थे तो बच गए। और फिर वो रुक गए थे, तो पानी बढ़ रहा था, लेवल 1 के ऊपर आने लग गया, पर बाद में वो पानी वहीं पर रुक गया, 1.5 लेवल तक आके, और फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होने लग गया। और तभी कोई रेस्क्यू बोट आ गई, उनको बचा दिया उन्होंने। तो तभी बता रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, बोलते कि तभी अगर मुझे वो क्लॉजेट का दरवाज़ा, उसको क्लॉजेट समझ के भी पर लगा था, तो मैं बच नहीं पाया था, क्योंकि मुझे दरवाज़ा खोला और मुझे एटिक दिख गया, तो मैं वहाँ पे बच पाया। तो वैसे ही क्या है कि हमारे जीवन में कभी भी शारीरिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे एक तूफान आ सकता है, और वो तूफान निगल सकता है, पर अगर हम हमारी चेतना उसके ऊपर ले जाते हैं, अगर हमने भक्ति की प्रैक्टिस की है, भक्ति से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो क्या होता है, हमको पता है कि यहाँ पर एक एटिक है, ऊपर जा सकते हैं। तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। द मोर थिंग्स चेंज, द मोर वी नीड टू होल्ड ऑन टू द थिंग्स दैट डोंट चेंज। जितना हम चीज़ें बदलते हैं चीज़ें, तो जो नहीं बदलता है उसको पकड़ के रखना जरूरी है हमें। तो क्या है जो नहीं बदलता है, वह है आत्मा का भगवान से संबंध। जब हम उससे जोड़ लेंगे तो तभी विल फाइंड दैट हमारे विल एक्सपीरियंस एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ऐसी ही हमको शांति और शक्ति मिलेगी जो अचरज कर देगी हमको। जब ये लगा था मैं तो ये सहन नहीं कर पाऊँगा, पर हम सहन कर पाएंगे उसको, और फिर उससे हमें पता लगा कि दिस भक्ति इज अ स्ट्रेंथ फॉर मी। तो इसीलिए रेगुलरली क्या है, वी शुड टेक टाइम टू, हम भक्ति प्रैक्टिस करते थोड़ा अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो तभी क्या होगा, जब कोई तूफान आ जाएगा तो हम उसमें फंस नहीं जाएंगे, उससे हम फेंकेंगे, हम चेतना को ऊपर नहीं पाएंगे। आंसर क्वेश्चन, थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? माइक सॉरी प्लीज। मतलब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी मतलब उसमें वो क्यों करते हैं कि वो होक्स है या फिर एक मिथ है। ओके, again I can say thank you for asking this question। ऐसा है कि अभी हर चीज़ का जो कोई भी प्रसंग है उसका अलग अलग स्तर पे हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे ठंडी लग रही है, तो इसका कारण हो सकता है कि शायद यहाँ पे पीछे कोई खिड़की है वो खुली है। ऐसा कारण हो सकता है कि मुझे बुखार है,
उसका कारण ये हो सकता है कि शायद मुझे ये दिल्ली के टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं है। उसका कारण ये हो सकता है कि मेरा स्वेटर जो है वो बहुत थिन है। अलग अलग कारण हो सकते हैं। एवरी एक्टिविटी, तो अगर एक इवेंट है, प्रसंग है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो R1 रीज़न 1, रीज़न 2, रीज़न 3 अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो विज्ञान की शुरुआत है, जैसे कहते हैं कि जब न्यूटन ने वो एप्पल गिरते हुए, कुछ लोग कहते हैं देखा, कुछ कहते उसके सिर पे गिरा, तो जो भी हुआ, मैं जब कैम्ब्रिज में बुलाया गया था साइंस एंड स्पिरिचुअल बोलने के लिए, तो हम गए थे। तो उसी में वो अभी वहाँ पे भी जो वो ट्री है कैम्ब्रिज, तो यहाँ पे उन्होंने न्यूटन ने कहते हैं कि वो पेड़ उसी पेड़ से वो एप्पल गिरा था। तो वो जो है वो वैज्ञानिक लोगों का वो एक तीर्थ क्षेत्र है वहाँ भी जाते हैं। तो अभी न्यूटन भगवान को मानता था, फिर भी जब वो एप्पल सफरचंद गिरा तो न्यूटन ने पूछा कि सफरचंद व्हाट मेड दिस एप्पल फॉल, सफरचंद क्यों गिरा? तो तभी वो ये जवाब नहीं देख रहे थे कि भगवान ने गिराया है। वो बोलते कि क्या है कि कौन, व्हाट इज द मैकेनिज्म, किस पद्धति से गिरा हो। तो हर चीज़ का अगर हम देखते हैं अभी एक मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और एक हम कह सकते हैं पर्सनल, कि भगवान के कारण हुआ है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। फिर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, फाइनल बॉल है, और तभी सिक्स चल है, और तभी वो बॉलर बॉल डालता है, बाउंस डालता है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, तो फिर वो करता है, सिक्स चलाता है, और सारा खड़ा सेलिब्रेट करता है। उसके बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू में पूछता है आपने छक्का कैसे मारा, और विराट कोहली कहता है बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Is it correct? What do you think? Yeah, it is correct, isn't it? But it is not the relevant explanation. हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सही है, कह सकते हैं कि बॉल उसने इतने स्पीड से डाला, बैट उसने इतने स्पीड से घुमाई, बॉल और बैट का इस एंगल पे कोलिजन हुआ, अगर थोड़ा ऊपर कोलिजन हुआ तो वो ऊपर जाता बॉल में, और फिर फील्डर कैच कर लेता था, वो सही है। पर उस समय हम वो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे, पूछ रहे हैं। अच्छा, हम सोचे जब इंटरव्यू पूछ रहा है तो पूछना चाहता है कि क्या, कि आपने कैसे एंटिसिपेट किया कि वो बॉल से डालेगा, कि इतने कूल कैसे शॉट मारा, पर इतना अच्छा हो पाने के लिए आपने प्रैक्टिस की थी पहले। तो पर्सनल एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग एक्सप्लेनेशन पे जोर देते हैं, ओके, और वही चीज़ के अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये भी एक्सप्लेनेशन है, ओके, मेरा बैटिंग प्रैक्टिस ये भी एक्सप्लेनेशन है। सो लाइक दैट कैसे है कि जब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी देखते हैं तो साइंस लुक्स फॉर मैकेनिकल एक्सप्लेनेशंस और स्पिरिचुअलिटी लुक्स फॉर पर्सनल एक्सप्लेनेशंस, और दोनों अपने अपने स्तर पे वैलिड है, दोनों सही है। पर प्रॉब्लम दो तरह से हो सकता है, एक है साइंस और दूसरा, ये शब्द कॉमन नहीं है पर ये विचारधारा काफ़ी कॉमन है, तो कहते हैं साइंटिज्म। किसे सुना है शब्द साइंटिज्म? साइंटिज्म मतलब क्या है? साइंटिफिक इंपीरियलिज्म। आप इंपीरियलिज्म जानते हैं, मतलब कि हम राजा हैं और कोई नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक, सब नहीं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो विज्ञान का एक्सप्लेनेशन है दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन and there is no other explanation allowed or possible। मतलब क्या है कि विज्ञान एक सब है, ये सब बाकी है ही नहीं, सब गलत है। तो जब विज्ञान अभी साइंस और साइंटिज्म दोनों अलग है। साइंस एक स्तर पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो सही है। अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से बोल सकते हो बॉल बाउंड्री के परे हो गया, पर क्या वो एक्सप्लेनेशन से ये कह सकते, अगर वो हम एक्सप्लेनेशन यूज कर रहे हैं तो क्या हम कहेंगे कि विराट कोहली की बैटिंग प्रैक्टिस को कुछ फायदा नहीं था? दैट इज ऑल्सो राइट एक्सप्लेनेशन, अलग अलग स्तर पे एक्सप्लेनेशन। पर साइंटिज्म क्लेम्स दैट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज द ओनली वैलिड एक्सप्लेनेशन।
तो जब ऐसे होता है तो तभी जो विज्ञान है वो आध्यात्म के खिलाफ हो जाता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑफरिंग एन एक्सप्लेनेशन अदर लेवल। क्लियर कि साइंस ऑफर विज्ञान एक स्तर पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आध्यात्म दूसरे स्तर पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पर कभी कभी विज्ञान, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, खासकर कुछ नास्तिक वैज्ञानिक कहते हैं कि वो और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसके लिए। तो तभी क्या होता है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी वो विरुद्ध में चली जाती है। और फिर ऐसे समय में कुछ आध्यात्मिक लोग ये भी कहते हैं कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वो भी सही नहीं है। तो द बिग बैंग थियोरी इज इटसेल्फ नॉट द प्रॉब्लम, बट शायद तो सही हो सकती है, सही नहीं हो सकती है, किसको पता है, उसके मैं थोड़ा बात करूँगा। पर एक थियरी साइंस की, बट प्रॉब्लम क्या है, व्हेन द बिग बैंग थियरी is used to say that there is no God and there is no role for God, that is when it becomes a problem. अभी हमारे ब्रह्मांड, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो ब्रह्मांड है वो महाविष्णु के शरीर से आता है, और वो उनके शरीर से आता है और विस्तार होता है, तो वो भी एक तरह से एक्सपेंशन का ही वर्णन है। पर उसमें जो शुरुआत है वो भगवान से हो रही है, वो कोई सिंगुलैरिटी से नहीं, वो कोई जड़ तत्वों से नहीं हो रही है। तो इसीलिए Big Bang theory is not the problem. When Big Bang theory is used to claim that there is no God, or when evolution is used to claim that there is no God, that is when it is a problem. Did I answer your question, or you have something else in mind? Yes. You don't sound very convinced. कोई सवाल है किसी का? यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली जब एडल्ट्स की क्लास होता है तो मोस्टली माता जी बहुत कम सवाल पूछते हैं, यहाँ पे बॉयज से कोई सवाल नहीं पूछ रहे। ओके, श्योर। प्रभु जी, लाइक बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, इस्कॉन में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, एंड उन मेजॉरिटी ऑफ द फेस्टिवल्स पे फास्टिंग होती है। सो फास्टिंग क्यों, फीस्टिंग हमेशा क्यों नहीं? कि फास्टिंग और फीस्टिंग हमेशा क्यों नहीं? कि फास्टिंग इंक्रीजेस द प्लेजर ऑफ फीस्टिंग। ऐसा है कि फास्टिंग से जब हम करते हैं तो उसके कई कारण हैं। एक है स्पिरिचुअल दृष्टि से भी हम खुद की पहचान स्वाभाविकता हमारे शरीर से करते हैं, पर जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम शरीर को उसकी ज़रूरत है वो एक तरह से नहीं दे रहे हैं, और एट अ बॉडी लेवल वी विल फील, हमको थोड़ी कमज़ोरी लगेगी, थोड़ी भूख लगेगी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा। पर अगर हम कृष्ण भावना में लग जाते हैं, अगर हम चाहे जन्माष्टमी है अभी फास्टिंग कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण भाव में जाते हैं तो हमको देखते हैं कि वास्तव में मैं आई एम नॉट फीलिंग सो मिजरेबल, आई एम नॉट फीलिंग सो डिस्ट्रेस्ड। तो क्या होता है कि अगर मैं केवल मेरा शरीर ही होता और शरीर को अन्न नहीं दिया तो मैं पीड़ित ही हो जाता, पर यहाँ पे शरीर को अन्न नहीं दे रहा हूँ मैं, पर अभी आत्मा का पोषण कर रहा हूँ मैं, तो फिर हम उससे समझ सकते, और मैं संतुष्ट हूँ, ये इतनी पीड़ा नहीं हो रही है। उससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में देयर इज समथिंग मोर टू मी देन माय बॉडी। तो फास्टिंग हेल्प्स अस गेन स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, दैट इज आवर प्राइमरी पर्पस इन फास्टिंग। और उसके साथ साथ आजकल फास्टिंग जो है वो उसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और कई लोग ऐसे हम हमारे यहाँ पे जपा रिट्रीट या कीर्तन रिट्रीट होता है। अमेरिका एक नया कंसेप्ट है फास्टिंग रिट्रीट। फास्टिंग रिट्रीट मतलब वो लोग कभी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन वो खाते ही नहीं कुछ, और वो देखते हैं कि उनका प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में होता है वो, तो उनका ब्लड प्रेशर, उनके बाकी सारे फिजिकल पैरामीटर एक्चुअली इम्प्रूव होते हैं उससे। तो क्या कहते हैं कि उससे जब बॉडी को हमेशा खुद का मेंटेनेंस नहीं करना, बॉडी को डाइजेशन में काम नहीं लगा रहा है, फिर वो बॉडी खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, रिपेयर वर्क कर सकती है। तो द हेल्थ बेनिफिट्स भी है, पर वो क्या है वास्तव में, इसमें समझना जरूरी है कि
गॉड जो है ये एक रिलीजियस ट्रूथ है, और साइंस जब मॉडल ले रहा है नेचर का, तभी इन प्रिंसिपल दे डोंट एक्सेप्ट कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना है उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए जो वो बोल रहे हैं दैट इज नॉट गॉड एज सच, वो विष्णु ने, विष्णु का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दैट इज एट द फंडामेंटल लेवल। सो देयर इज वन सिमिलैरिटी, एक सिमिलैरिटी उसमें कि इट इज अकॉर्डिंग टू उनके प्रपोजिशन के अनुसार वो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब वो कहते हैं कि गॉड इज ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस। बट क्या है कि भगवान कॉन्शियस है, गॉड पार्टिकल भले ही वो एक थियरी है, सत्य है, जो भी है, इट्स नॉट कॉन्शियस। तो अगर भगवान सब चीज़ों के स्रोत है, सी देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट गॉड। भगवान जो है ये एक तरह से सही है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब हर चीज़ के अंदर है वो, पर उसके अलावा भगवान सब चीज़ के नियंत्रक भी है, कंट्रोलर भी है। तो जो गॉड पार्टिकल है वो कंट्रोलर नहीं है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे क्या कि अभी इस इमारत, ये जो इमारत बनी मंदिर है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक जो है ब्रिक्स है, ईंट है, पर वो ईंट इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है वो नियंत्रण नहीं कर रहा है। तो उसमें अगर वो होगा भी सही, तो जस्ट वन फीचर। और फिर भगवान का जो है एक ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस भी है। मतलब क्या है कि भगवान न केवल इस सृष्टि में है, पर उनका तो पूरा सृष्टि के परे भी है। तो ये जो गॉड पार्टिकल है वो सृष्टि में ही है, पार्टिकल उसके परे कुछ नहीं है। तो इसलिए वो जो वैज्ञानिक है, जस्ट टू कैच अटेंशन फॉर देयर थियरी, कभी उन्होंने गॉड पार्टिकल यूज़ किया। उसका टेक्निकल नाम हिग्स बोसोन था, और जिन्होंने फाइंड किया वो भी कह रहे थे वी डोंट लाइक द नेम गॉड पार्टिकल, बट somehow वो पॉपुलर मीडिया में कैच हो गया और पॉपुलर हो गया। बट इट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद गॉड एज सच। यस, जैसे भी हम लोग जैसे मैक्सिमम जो हमें चैलेंजेस हमें लगते हैं व्हेन वी आर टीचिंग द स्टूडेंट, नाउ इज लाइक पहले जो अटेंशन टाइम स्पैन था वो पहले बताया जाता कि 2005 में शायद 16 सेकंड था, नाउ इट्स गेटिंग डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है हमारे जीवन में। तो कैन यू गिव सम टिप्स कि कैसे हम जो मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत जीवन में रहता है, तो उससे कैसे, स्पेशली मोबाइल फोन्स और जैसे यूथ एज में। सबसे पहले क्या है कि कुछ भी हो, अगर लोगों का डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो कैसे उनको हम कैसे स्पिरिचुअलिटी शेयर कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जिनसे भी हम स्पिरिचुअलिटी शेयर कर रहे हैं, वी नीड टू रिस्पेक्ट। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, से कहते हैं वो कोई भी नियम पालन नहीं कर रहे थे, पर प्रभुपाद उनको ध्यान दे देते थे, जब बात करते थे। तो वी नीड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर ऑडियंस। और आप कह सकते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, पर वो एक ही सर्वे है। दूसरा सर्वे दिखा रहा है कि एक्चुअली लोगों का IQ बढ़ रहा है। द एवरेज IQ ऑफ अ यूथ इन 2020 is at least 20 points more than the average IQ of a youth in, not 20 but 12 to 15 points more than the IQ of a youth in 1990. तो क्या है, आजकल का जीवन जो है और कॉम्प्लेक्स है। अभी क्या है कि मैं मेरा भाई है, उसका बेटा हुआ है, छोटा बच्चा है वो कोई वीडियो गेम्स खेलता है। मैं उसके साथ बैठा था, वो उसको वीडियो गेम क्या है वो समझने के लिए 10-15 मिनट लग गए मुझे। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये बताओ वो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या है, द कैपेसिटी टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी इज फार मोर इन द यूथ टुडे देन इट वाज इन द पास्ट। अभी डिवाइसेस को कितना एक्सपर्ट होते कोई बच्चे आजकल जो है, इट्स अमेजिंग। तो ऐसे नहीं है कि ठीक है अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ऐसे नहीं कि उसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह से अच्छे हैं। देयर कैपेसिटी, स्पेशली कैपेसिटी टू हैंडल टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो और ये जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जिनको भी हम भक्ति करना चाहते हैं, वी शुड बी एबल टू सी गुड इन देम। इफ वी, हर एक व्यक्ति में पोटेंशियल है
हर एक व्यक्ति में प्रॉब्लम्स है। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो फिर अंदर से नकारात्मक भाव होगा, और भले ही हमारे वचनों में नहीं आएगा, फिर भी हमारे शायद जेस्चर्स में आ जाएगा, हमारे बर्ताव में आ जाएगा, और जब लोग देखेंगे वो तो छोड़ेंगे, वो मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। The attitude of youth today is if you look down at me, I won't even care to look at you. अगर आप मुझे नीचा देखते हो तो मुझे तुम्हारे देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए मेरे। तो रिस्पेक्ट इज वाइटल, और ये अमानिना अमान देना हमारे जिंदगी के सिर्फ 50 लोग होते हैं, ये हमारे तत्व ज्ञान का एक मूलभूत अंग है। तो जो उनमें अच्छा है वो देखना जरूरी है सबसे पहले, और उसके बाद में अभी हम अटेंशन स्पैन कम है। अटेंशन स्पैन कम क्यों है? अटेंशन स्पैन कम इसलिए है क्योंकि द कैपेसिटी टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी इज हाई। तो जो एक्चुअल वर्ल्ड है वो उनके लिए बोरिंग लगता है, इसलिए यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, वहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। बट वो एक्चुअली इट्स नॉट बिकॉज दे आर फूलिश, इट इज बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड टू फार ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी देन व्हाट इज नॉर्मल इन द वर्ल्ड। Now, is that a good thing, a bad thing? We don't know. क्या अच्छा है, बुरा है? क्योंकि क्या होता है कई बार तो रियल लाइफ में एक्टिविटी करने के लिए वो कितना तत्पर है, तत्पर नहीं है, वो अलग बात है। बट स्टार्ट विथ पॉजिटिव ऑलवेज। फिर उसके बाद में जो भी अटेंशन स्पैन है उनका हो ज़्यादा, और उसमें भी हम भक्ति का प्रदान कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आजकल जो यूथ है, अगर आप पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, यूथ आर द मैक्सिमम कंज्यूमर्स ऑफ पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो 1 डेढ़ 2 घंटा 2.5 घंटा पॉडकास्ट होता है, और लोग सुनते हैं कुछ ऐसे, खासकर के अमेरिका में है, हम कहते हैं इंडियन वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। अमेरिका में यूथ आर द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ पॉडकास्ट, और कभी 2-2.5 घंटे का सीरियस पॉडकास्ट, कोई ह्यूमर नहीं है, कुछ जोक नहीं है, पर वो लोग उसके 2-2.5 घंटे का पॉडकास्ट 5 मिलियन व्यूज़ है, 10 मिलियन व्यूज़ है, तो लोग सुन रहे हैं। ऐसे नहीं कि लोगों को 1 मिनट 2 मिनट कहते, 1 मिनट 2 मिनट सुन रहे हैं लोग, पर बड़ा भी सुनते हैं। तो यस, कैसे है कि कलयुग में अभी आज का कहते हैं आजकल के समाज में क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों हमको इंटरनेट में दिखेंगे। विकिपीडिया जैसे जो एनसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन, वो बनाने के लिए बहुत सत्वगुण लगता है, हर वाक्य के लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है, आसान नहीं है, और ये लोग फ्री में कर रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या है, जो सोशल जो 3 गुण हैं वो सब में है, और वो हमेशा में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कितनी भी टेक्नोलॉजी प्रगतिशील हो जाएगी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों हमेशा रहेगा, और टेक्नोलॉजी भी तीनों उद्देश्यों से उपयोग हो जाएगा। तो क्या है, खास करके वी नीड टू फाइंड दोज पीपल हु आर सत्वगुण। जो सत्वगुण में ज़्यादा लोग हैं उसमें भी है, जो पिछले 5-7 सालों में इंडिया में भी बुक क्लब्स एक्चुअली बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं इंटरनेट के कारण लोग पढ़ते नहीं, ये सब देख रहे हैं, सही नहीं है। जो बुक शायद लोग अभी किंडल पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, फिजिकल बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, पर किताबें पढ़ते हैं लोग। और लोग तो क्या है, बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमारे धारणाओं से विपरीत दुनिया में हो रहा है, तो वी हैव टू फाइंड द राइट ऑडियंस। अगर ऐसा ऑडियंस है जो जिसका अटेंशन स्पैन को लगता है बहुत कम है, तो फिर थोड़ा उनको और एंगेज करने की हमें पद्धति निकालनी चाहिए। ऐसे अगर हम इफ वी कैन मेक आवर मैसेज मोर इंटरेस्टिंग, आवर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग, देन डेफिनेटली देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड। Does that answer your question? One thing, this is for us, we are teaching, but as a student I am saying कि मुझे जैसे मैं जीवन में जी रहा हूँ तो बहुत बार मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। एज अ पॉइंट ऑफ स्टूडेंट सेइंग कि मेरा जो टाइम में बहुत वेस्ट हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि अदर पीयर प्रेशर के कारण मैं बहुत चीज़ें कर रहा होता हूँ जो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ओके नहीं करना चाहिए। ओके, तो वैसे द की टू ट्रस्टिंग आवरसेल्व्स इज टू नो व्हेन नॉट टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स। आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन। अगर हम कहते हैं मुझे आत्मविश्वास चाहिए, खुद में विश्वास करना है, ज़रूरी है,
पर खुद में विश्वास करने के लिए मूलभूत ये ज़रूरी है कि हम जान लें कि मैं खुद में विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि मेरी क्षमता है कि मैं 25 किलो उठा सकता हूँ, और अगर मैं सोचता हूँ कि 50 किलो उठा लूँगा तो उठाऊँगा और बाद में लोगों को मुझे उठाना पड़ेगा है ना? तो फिर क्या है, तभी अगर मुझे लगता है कि मैं उसको उठाऊँगा तो आई कैन नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ। तो हम सबकी कोई कमजोरियाँ हैं। तो मान लीजिए अगर जानता हूँ मैं भगवगीता पढ़ने बैठ जाता हूँ तो कुछ फ़ोन पे व्हाट्सएप पे ही मैसेज आ जाएगा, वो आ जाएगा, सेवा भी होगी, उसमें बिजी हो जाऊँगा। तो अगर मैं जानता हूँ ऐसे तो शायद 1 घंटे के लिए मैं फ़ोन ऑफ करता हूँ, एयरप्लेन मोड पर डालता हूँ। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मैं फाइंड रहता मेरा बेस्ट स्क्रिप्चुअल स्टडी कब होता है, जब मैं फ़्लाइट में होता हूँ। ज़बरदस्ती फ़्लाइट में मोबाइल से कुछ मैसेज नहीं आ रहे तो फिर आई कैन इमर्स माई सेल्फ इन राइटिंग और रीडिंग। तो क्या है कि हम सबके अपने अपनी कमी कमज़ोरियाँ हैं, तो हमारी कमज़ोरियों को समझ के उसमें खुद ही बाउंड्रीज बनाना कि अगर कोई चीज़ मैं जानता हूँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ तो फिर वी हैव टू क्रिएट द बाउंड्रीज फॉर आवरसेल्व्स। सो मतलब नहीं मैं फ़ोन पास में रखूँगा और फोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊँगा, मैं फ़ोन देखूँगा। अगर एक बार ऐसे होगा, दूसरी बार ऐसे होगा, तीसरी बार ऐसे होगा, वी शुड लर्न नॉट टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स। तो फ़ोन बाजू को ही रखता हूँ। जब इस तरह से हम करते हैं तो बाद में जब हम कोई फैसला करेंगे कि मैं करने वाला हूँ तो करता हूँ मैं, तो क्या होता है कि द की टू ट्रस्टिंग आवरसेल्व्स इज टू नो व्हेन नॉट टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स। कि ये मेरी क्षमता के परे है तो मैं ये खुद नहीं कर पाऊँगा, इसका मतलब है कि मैं करूँगा नहीं। आई नीड सम एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो वो फ़ोन को बाजू में रखते उस समय के लिए। वैसे ही अगर हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं खुद के लिए तो फिर क्या होता है, उससे हम जो हमारी क्षमता में है वो करेंगे, उससे हमारी क्षमता बढ़ेगी और फिर हम और अच्छा कार्य कर पाते हैं। जो अभी जो बाउंड्रीज के परे है वो भी हम शायद कर पाएंगे बाद में। तो यदा समृति चायम कूर्मो सोचा, उसने कहते हैं जैसे कछुआ है वो अपने अवयव को अपने शरीर के अंदर ले लेता है, वैसे ही हमें भी कुछ बाउंड्रीज को क्रिएट करना जरूरी है, उससे हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। ओके रोजी हम देखते हैं कि ना इन स्टूडेंट्स की लाइफ में आजकल स्टडीज़ का प्रेशर बहुत है। मतलब जैसे ही ये हायर मतलब 12th स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कोचिंग्स करते हैं और साथ ही साथ में जब भक्ति को भी स्टार्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ स्टडी प्रेशर फिर वो भक्ति डाउन हो जाती है और उसको बैलेंस नहीं कर पाते। मतलब कैसे हम स्टडीज़ को और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करें, तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे बैलेंस कर दोनों का। मान लीजिए हमारा जीवन है, उसमें अनेक प्रकार के कार्य हैं, एक्टिविटीज़ है, हमारी स्टडीज़ है, हमारी पढ़ाई है, हमारी भक्ति है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारी फैमिली एक्टिविटीज़ है, सब है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है। तो उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ है जो हमें शक्ति देती है, जो करने से हमको अच्छा लगता है, हमको एनर्जी आती है, हमको प्रेरणा मिलती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी शक्ति ले लेती है। तो कोई अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट ऐसे होता है आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाई करते तो आपको प्रेरणा अच्छा लगता है, इसकी एनर्जी ये समझ में आ गया, अच्छा लगा मुझे। और कोई सब्जेक्ट ऐसे होता है उसका नाम सुनते ही पूरी एनर्जी आती है, क्यों करना ऐसा होता है। तभी सबके जीवन में ऐसे है, भक्ति भी ऐसे हो सकता है। कुछ कार्य हमको अच्छे लगते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं उसे पूरी एनर्जी ले जाती है करते करते। पर शायद वो एक जिम्मेदारी है, करना ज़रूरी है। तो द की टू बैलेंस मतलब क्या है, ज़रूरी है कि द एक्टिविटीज दैट गिव स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन द एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्ट्रेंथ। जो कार्य हमें शक्ति देते हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए, जिससे कि जो कार्य हमें शक्ति देते हैं वो कम हो उससे। तो इसीलिए हमें खुद अन्वेषण करना है, खुद आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमारे लिए कौन से कार्य हैं जो हमें शक्ति देते हैं, कौन से कार्य है वो शक्ति देते हैं। और अगर भक्ति में हम ढूंढ पाते हैं कौन से कार्य जो शक्ति देते हैं मुझे,
तो फिर वो कार्य करने से हमारे जीवन का प्रेशर बढ़ेगा नहीं, वास्तव में उससे प्रेशर सामना करने में मदद होगी। तो इसीलिए क्या है, जो कोई भक्ति कर रहा है, खास करके बहुत एकेडमिक प्रेशर के समय में है, तो उनको ये सब कुछ करना जरूरी है, ऐसे पता उससे ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस समय में तुम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्या ही कर सकते, हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, ये करते हैं। तो वैसे भक्ति को 1-0 बनाना जरूरी नहीं है, आपकी पूरा करो या कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जो कर सकते हैं वो करो, तो बाद में आपका प्रेशर थोड़ा कम होगा तो फिर बाकी चीज़ें और कम कर सकते हैं। ओके, so thank you very much. Last question. Sometimes the subjects which we don't like. But sometimes the subjects which we don't like, if we don't give energy to those subjects and if we are not studying those, we certainly get like we are not able to connect them. Even if we avoid it for a single day, though they don't give us any strength, in fact, a lot of demotivation along. But so then what should we do? तो जो हमें जो चीज़ें ऐसे मुश्किल लगती है हमको, वो अगर नहीं करते हैं तो और मुश्किल आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा उनको टालो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो करना है हमें, अगर करना ज़रूरी होता है, तो वो जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी करो जिससे हमको शक्ति मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है, तो उसे बैलेंस करो। तो उससे क्या होगा, पूरा एग्जॉस्ट नहीं जाएगा। ज़रूरी है, अगर को कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना हम करें, क्योंकि हमारे लिए करियर के महत्वपूर्ण है, मुझे ज़्यादा एफर्ट लगता है शायद उनके लिए, बट अगर वो ही करेंगे तो प्रॉब्लम है। आई एम नॉट सेइंग अवॉइड दैट, आई एम सेइंग दैट बैलेंस व्हाट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ विद व्हाट गिव्स स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद। कन्या प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो पूरे तहे दिल से हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने शेयर जस्ट सच रिचुअल वर्ड्स। और मैं पर्सनली मैं बताऊं तो आप लोग कितने लोग हैं इस वेबसाइट में गए हो, द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट? अगर हम नहीं गए हो तो आप लोग जरूर जाके इसको एक्सप्लोर कीजिए। इसके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4,500 से 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या बहुत सारे डिवोटीज ने पूछे हैं, उनके जीवन में संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस, आपको बहुत सारे आंसर्स, और प्रभु जी ने उसको बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करके बहुत अच्छे तरीके से, और इसके साथ में आपने कितने लोगों ने गीता डेली आप लोगों ने कभी प्रभु जी का पढ़ा है? गीता डेली, ये भगवत गीता के ऊपर हर वर्ष के ऊपर प्रभु जी ने बहुत ही एक तरह से सूत्र दिए हैं एक पैराग्राफ के अंदर, जिसमें बहुत अच्छे से गीता का मीनिंग क्या है एक श्लोक का, तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। एंड यू रियली एनरिच योर नरिश योर स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप उसको करते हो। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि प्रभु जी ने इतना समय दिया और हमें एक क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे डाउट्स को लिया और हमें हेल्प किया। तो प्रभु जी के हमें पूरे हृदय से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा मत बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिक्वेस्ट प्रभु जी, अमित कितने लोग चाहते हैं प्रभु जी दोबारा हमें इंटरेक्शन हो? हरिओ। तो रिक्वेस्ट प्रभु जी कि जब भी दिल्ली में आए या कभी आसपास भी होते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर भी, तो प्रभु जी जरूर हमें संग देने के लिए। इसके सामने प्रभु जी की बुक्स हैं, तो ये है ये गीता डेली के जो मेडिटेशन जी है प्रभु जी के नहीं। यस, so if any of you would like to read more about what we discussed, so much of what I spoke was from this book. This is the Gita from an application perspective, 365 articles, one article per page with some 3 reflection questions. There's 3 sections: nourish yourself, nourish your relationships, and nourish your devotion. And each has about 120 articles. And especially we talk about balance and managing the mind and emotions. So these are talked about in this book, and the table of contents is 20 pages. So you could